Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I'm going to do discussion on previous year's question paper, Introduction to Political Theory BA program first semester. And this is only because students told me that ma'am, please are you going to discuss with us previous year's question papers because we are finding difficult since the syllabus they have been changed and we don't have any a question paper. So I told them, yeah, I have one set of question paper, and if I get other also, I'll let you know and I'll share with you and discuss with you. So, girls, today I brought with you uh, previous year's discussion, that is 2019 year discussion on इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी. और आप लोग प्लीज ये जो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है पेपर बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस जो साल था 19-20 का उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, डिस्कस भी कर रही हूँ एंड आई होप दैट यू विल लिसन टू इट केयरफुली एंड हैव पेशेंस एंड और किस तरह से मैं आज क्या आपके साथ करने वाली हूँ ये हमारी पॉलिटिकल साइंस चैनल में. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल एंड I will be obviously sharing with you the questions and the strategy, how you are going to attend the answers and what are the, you can say, the ways through which you can write a good answer and which topics you can leave while preparing for introduction to political theory, since you have very less time and you are going to give your exams in the month of March, and mostly it would be an online exams where you have to upload your answer sheets. So students and girls, please listen to it carefully. First question that was on political theory and its relevance, I have already discussed previously, so it's there in the my playlist. You go and visit there and you can find how you are going to write an answer on what is political theory and what is its relevance. So my full video I have discussed in extensive, so there each slide is being covered, that how you are going to write the question answers for both the subparts, that for what is political theory and what is its relevance. So you can go and watch there and you can note it down. फिर जो आज जो दूसरा डिस्कशन है नेक्स्ट क्वेश्चंस के, तो बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैम प्लीज़ ये डिस्कस कर दीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं पूरे साल पर जब हम क्वेश्चंस के आंसर लिखना चाहते हैं अच्छा और कैसे हो, इनफैक्ट हमें वो भी करना होता है, एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है जिससे हम एक अच्छा आंसर लिख सके मैम. सो प्लीज डू इट. सो गर्ल्स, इट्स हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस बर्लिन्स टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी. ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे बर्लिन के स्वतंत्रता की दो अवधारणाओं की विवेचना करना है इसमें. ठीक है, तो बर्लिन आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, जिस भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक को भी आप रेफर कर रहे हैं, इनफैक्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे रिसेंट जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसमें आपके बीए प्रोग्राम का सारा सिलेबस कवर हो रहा है और जो न्यू सिलेबस है वो भी कवर हो रहा है. तो प्लीज इफ यू वांट यू कैन get the book online that is available on Amazon, and then there also you will find how you are going to write an answer to these questions, क्योंकि questions के answers clearly वहाँ पे लिखे हुए भी हैं, but still मैं आपके साथ discuss कर रही हूँ. जैसे पहला question है बर्लिन्स का जो concepts of liberty, तो इसमें तो concept of liberty में negative and positive liberty you have to discuss. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट डाउन व्हाट एग्जैक्टली इज लिबर्टी. यहाँ पे हमें बर्लिन का कोई बैकग्राउंड नहीं देना है कि कब जन्म लिए, क्या हुआ, ये सारे जो बच्चे करने लग जाते हैं. आई डोंट थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स नॉट अ थॉट पेपर. सो व्हाट यू नीड टू डू इज हियर, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज लिबर्टी. ठीक है, लिबर्टी आप जैसे भी चाहे डिफाइन करें, चाहे नेगेटिव में करें, पॉजिटिव में डिफाइन करें, या जिस तरह से लिबर टर्म है उस संदर्भ में भी कर सकते हैं कि लिबर टर्म के संदर्भ में दिया गया है ये. तो और उसके बाद जब आप स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप आइसिया बर्लिन पे आइए. आइसिया बर्लिन ने अपनी कौन सी फेमस जो वर्क है उसमें टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी की चर्चा की. ठीक है, उसके बाद वो दोनों में अंतर बताते हैं. इनफैक्ट मैंने अपना एक वीडियो जिसमें जेएस मिल और आइसिया बर्लिन के लिबर्टी को मैंने डिफरेंशिएशन काफी मतलब एक्सटेंसिव तरीके से किया है, एंड देयर आर स्लाइड्स आल्सो सो विजिबल, सो यू कैन गो लुक इनटू इट एंड देन ऑब्वियसली नोट इट डाउन.
तो वहाँ से एक हमारा ना डिफरेंशिएशन भी हो पा रहा है, क्योंकि जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है आइसिया बर्लिन का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का, और जेएस मिल ने भी जो है लिबर्टी को सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग में बांटा है, जिसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव के संदर्भ में देख सकते हैं। तो उन दोनों में आइसिया बर्लिन और जेएस मिल में काफ़ी सिमिलैरिटीज मतलब हैं और अंतर भी हैं। तो बेसिकली उन दोनों के जो स्वतंत्रता के सिद्धांत है, क्या अंतर है, ये आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं। और जब आप बर्लिन के आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज डिस्कस नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी प्रॉपरली, अच्छे से समझाना है। उसके बाद समझाने के बाद आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, और आलोचना इसलिए ज्यादा नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिस्कस बर्लिन्स टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, दे आर नॉट आस्किंग क्रिटिकली एग्जामिन, ना वो क्रिटिकली इवेलुएट के लिए बोल रहे हैं। तो आप बहुत ही ब्रीफ में 100 वर्ड्स 50 वर्ड्स में भी ब्रीफ में आप लिख सकते हैं कि किस तरह से उनकी स्वतंत्रता के सिद्धांत की आलोचना होती है, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है। एंड देन यू कैन conclude it positively. You do not have to criticize any scholar. चाहे आप जेएस में लिख रहे हो, चाहे आप बर्लिन लिख रहे हो, चाहे आप जॉन रॉल्स लिख रहे हैं, whenever you are ending your answer to any question in political theory, you do not, in fact in anything, you do not need to negatively end your answer. You have to properly give a futuristic perspective of that particular concept and the scholar in contemporary times, or you have to write what they brought through that theory, through that idea. If you find that that particular author या thinker जो भी हैं समसामयिक समय में ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, फिर भी आप उन्होंने जो भी अपनी उपागम या थ्योरी के माध्यम से उन्होंने करने की कोशिश की, उसकी आप चर्चा कीजिए, ठीक है। और एक चीज और स्टूडेंट्स, वेन एवर यू आर राइटिंग एनी आंसर, आप आंसर लिखें, क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ये नहीं कि हमने देख लिया अच्छा लिबर्टी है, लिबर्टी पे जो भी आता लिख देते, वट एवर वी नो वी आर राइटिंग ऑन लिबर्टी, सो दैट इज नॉट डन। एंड इफ एन एग्जामिनर इज सीइंग ईच ऑफ योर शीट्स, he or she, then obviously then you will be getting penalized for that. बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको आप जो है अपने इंट्रोडक्शन में डिफाइन करें, ठीक है। दैट ऑल्सो कैन बी अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग और इंट्रोड्यूसिंग रादर देन पुटिंग जस्ट इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना डालें और फिर हमने लिखना शुरू कर दिया। ऐसे इसके साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जेएसमेल के लिए भी करिए। और मैं क्वेश्चंस जो है आपको बोल देती हूँ आप लोगों के किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, और साथ साथ उसका हिंदी जो है वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। और अगर कुछ डिटेल्स रह जाएगा तो अगेन आई विल पुट इट अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इक्वालिटी से आया हुआ है, ठीक है। और इक्वालिटी के टाइप्स ऑफ इक्वालिटी जो है, प्रकार, उसमें से है ये, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर राइट, सिंपल है, अधिकार क्या है, राइट एन एसे ऑन इट्स वेरियस डायमेंशंस, इसकी जो विभिन्न आयाम है उस पे एक ऐसे लिखना है। तो कोई टिप्पणी भी करनी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लिखना है। लीगल राइट्स, सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, आप सारे राइट्स के उस पे लिख सकते हैं। इनफैक्ट जो थ्योरीज ऑफ राइट्स हैं उसको भी आप लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे डायमेंशंस में डाल सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरीज हैं वही डायमेंशंस है, मैंने क्लास में भी बताया है। बस ये है कि थ्योरीज आप बहुत इलेबोरेट से लिखते हैं, थ्योरीज को क्रिटिसाइज करते हैं, डायमेंशंस को जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने की, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में भी आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक ही साल दोनों जस्टिस के सिद्धांत पे आ गया, रॉल्स के भी आ गया, नॉज़ाइक के भी आ गया। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि इंटाइटलमेंट थ्योरी जो नॉज़ाइक का, तो ये एक तो पहली बार तो ये डिफिकल्टी भी है समझना, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ नॉज़ाइक का, तो आप रॉल्स की थ्योरी अच्छे से करके जाइए। और इनफैक्ट कई बार रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ साथ क्रिटिक टू जॉन रॉल्स, फेमिनिस्ट क्रिटिक टू जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हमेशा आता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप थ्योरी ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो रॉल्स थ्योरी, नॉज़ाइक थ्योरी एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक टू जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, दीज आर द थ्री आई कैन से द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, रिपीट भी होते हैं, रिपीट हो या नहीं हो, लैंग्वेज चेंज करके भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो रॉल्स थ्योरी पे ऑफ जस्टिस आप भी मेरे जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। नॉज़ाइक इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस पे भी मैंने बनाया हुआ है वीडियोस मेरे अपना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सेक्स जेंडर डिबेट इन फेमिनिज्म।
अब ये जो सेक्स और लिंग में जो अंतर है और ये फेमिनिज्म का जो पूरा डिबेट है, ये बहुत हद तक हम लोग जब ये यूनिट्स करेंगे डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट, उसमें भी ये बहुत हद तक कवर होगा और मैंने अपनी बुक में भी कवर किया एक्सटेंसिवली, थर्ड यूनिट। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, डज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। हिंदी में है सुरक्षात्मक भेदभाव से क्या अभिप्राय है, क्या यह न्यायोचित के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। न्यायोचित के सिद्धांत का, जो न्याय करने का जो सिद्धांत है उसका क्या ये उल्लंघन करता है। तो ये क्वेश्चन में दो सब पार्ट हैं। पहला हम सकारात्मक कार्रवाई या सकारात्मक भेदभाव को समझाएंगे और इस समझाने के लिए हमें अनौपचारिक समानता को समझाना पड़ेगा, क्योंकि औपचारिक समानता तो ये है नहीं, अनौपचारिक समानता है। तो ये जब आपने इक्वालिटी किया होगा वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो और थर्ड यूनिट के डिबेट्स में भी दिया हुआ है। और फिर तब हम इसके डिबेट करेंगे कि क्या ये फेयरनेस के सिद्धांत जो जस्टिस के अंदर दिया गया है, क्या इक्वालिटी अगर हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के संदर्भ में देखेंगे तो क्या ये जस्टिस के फेयरनेस के सिद्धांत को निगेट करता है या इसको वॉयलेट करता है। इस बात की हमें पुष्टिकरण करनी है यहाँ पे। इनफैक्ट जब भी हम डिबेट्स या कोई आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो व्हाट आर वी डूइंग, दैट वी आर ट्राइंग टू टेस्ट दैट आर्ग्यूमेंट। हम उस आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करते हैं पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, डिबेट का फेवर और डिसफेवर में, और फिर हम उसको एक बैलेंस तरीके से आंसर देना हमें पड़ता भी है और ज़रूरत भी होती है, क्योंकि बोथ साइड ऑफ द चीज़ें हैं इसमें। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होना भी चाहिए और साथ के साथ जो पॉलिसी है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस वो भी बरकरार रखनी चाहिए, so that merit is not hampered. So students, I hope we had a good discussion on previous year's question paper and all. तो ये पूरा मेरा वीडियो आप देखने के बाद आप जो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं उसमें जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको ये सारे जो टॉपिक्स ऊपर लिखे हुए हैं स्लाइड्स में, सब पे आपको वीडियो मिलेगा। एक या दो हैं जैसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और हाँ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पे, इस पे अभी मैंने नहीं अपलोड किया है और मैं बहुत ही जल्द उस पर भी करने वाली हूँ। तो इफ़ यू स्टे कनेक्टेड टू द प्लेलिस्ट ऑन political theory, what I personally feel is 90% of your things would be cleared, and then whatever you are attending your classes and all and the books which you are taking and learning, that obviously would help you a lot. But stay connected students and feel free to discuss with me any of your doubts. Okay, have a nice day and a good day. Best of luck.